अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो कि फिजियोथेरेपिस्ट की सीट्स के लिए कंडक्ट हुआ है 23 और 24 नवंबर 2023 को। और इसके अंदर जो हमें स्टेटमेंट्स मिली हैं डिफरेंट कोलीग्स के थ्रू, उनके हमने MCQs जहाँ तक रिकॉल हैं उनको हमने एक पावर पॉइंट की शक्ल के अंदर तरतीब दिया है, और ताकि जो भी हमारे नए जूनियर्स हैं या कोलीग्स हैं या सीनियर्स हैं, नेक्स्ट टाइम जब SPSC एग्ज़ाम आए तो उनके पास गाइडेंस के लिए कुछ मटेरियल मौजूद हो जिसको फॉलो करके वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ MCQs थे दैट वर 50, जिसमें से 40 MCQs आपके कोर्स में से थे, DPT में से, और 10 MCQs आपके इंग्लिश लैंग्वेज से थे। और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.5 मार्क्स की थी। इसको अगर हम इसका कंपैरिजन करें PPSC के साथ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में ही, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ MCQs थे दैट वर 100, जिसमें से 80 MCQs DPT के कोर्स में से थे और 20 MCQs हमारे इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के अंदर से थे। और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 0.25 मार्क्स की थी। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ MCQs हैं वो कम हो गए हैं, 50 MCQs हैं, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 0.5 की है। फर्स्ट MCQ की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी टू द मसल और टेंडन इज नोन एज स्प्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेस और नन ऑफ दीज, एंड टू माय नॉलेज द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेन। यहाँ पर एक चीज़ मैं डिस्कस करता चलूँ कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं या जो आंसर्स हैं वो मेरी नॉलेज के हिसाब से मार्क किए गए हैं। देयर आर चांसेस कि कुछ स्टेटमेंट्स एज इट इज़ ना हो या आंसर्स करेक्ट ना हो। तो उस सिनेरियो के अंदर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस चीज़ को हाईलाइट कर दें, ताकि हम जो भी व्यूअर्स हैं उनको बता सकें कि करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट स्टेटमेंट ये थी। Next MCQ was DTR's deep tendon reflexes are assessed by. Options were tapping on specific tendons, scratching lateral surface of foot, rubbing distal phalanx, or resisted movement. And the correct option is tapping on specific tendon. Next MCQ, medial epicondylitis is also known as. Options were golfer's elbow, tennis elbow, badminton's elbow, or footballer's elbow. And the correct option is golfer's elbow. The next MCQ was which instrument is used for the measurement of range of motion? Options were goniometer, dynamometer, tense, or pulley. And the correct option is goniometer. Dynamometer is basically used for measuring muscle power or strength, and tense and is used for treatment purposes, and pulley is also used for treatment purposes. Next MCQ was the Cooley's fracture involved which of the following bones? Options were proximal one third of radius, proximal one third of ulna, distal one third of radius, or distal one third of ulna, and the correct option is distal one third of radius. Next MCQ was the injury to the axillary nerve affects which of the following muscles? Options were biceps, brachialis, deltoid, or none of these. And the axillary nerve supplies the deltoid muscle, so the correct option is deltoid. Next MCQ was which of the following options suggests inferior shoulder dislocation? Options were sulcus sign, Froment sign, posterior leg sign, or night bulb sign, and the correct option was option A, sulcus sign. Next MCQ was the patient is limping and avoiding weight bearing on affected leg or foot. Which of the following options describe this patient's gait? Options were steppage gait, antalgic gait, hemiplegic gait, or none of these. And अगर कोई ऐसी गेट पैटर्न है जिसमें पेन की वजह से जो हमारा पेशेंट है वो वेट बेयरिंग नहीं कर रहा अफेक्टेड लेग के ऊपर, so that gait is known as antalgic gait. Next MCQ was which of the following is a neurological gait pattern that is associated with elevation of hip and high steps? Options were hemiplegic gait, steppage gait, spastic gait, or waddling gait. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेपेज गेट। स्टेपेज गेट के अंदर बेसिकली जो पेशेंट है वो अपने हिप और फुट को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है, और जब वो ज़मीन पे रखता है तो एक ज़ोरदार साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम स्टेपेज गेट का नाम देते हैं, और बेसिकली फुट ड्रॉप के पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती है।
Next MCQ was which of the following is the primary muscle for breathing? Options were diaphragm, sternocleidomastoid, intercostal, or none of these. And the correct option is diaphragm. Next MCQ was which cranial nerve is responsible for the movement of shoulders and neck? Options were vagus, accessory, hypoglossal, or oculomotor nerve. And the correct option is accessory nerve. This is because the accessory nerve supplies the sternocleidomastoid and trapezius, and they are responsible for sternocleidomastoid is responsible for the movement of neck, and trapezius is responsible for the movement of shoulders. So the correct option is option B, accessory nerve. Next MCQ was foot drop is caused by damage to. Options were tibial nerve, peroneal nerve, interosseous nerve, or femoral nerve. And the correct option is option B, peroneal nerve or common peroneal nerve. Next MCQ was in which type of the fracture the bone is shattered into two or more pieces. Options were comminuted fracture, spiral fracture, transverse fracture और oblique fracture. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर कि अगर हमारे पास बोन्स के जो फ्रैक्चर है वो मल्टीपल पीसेस के अंदर बोन्स शैटर हो जाए, दैट फ्रैक्चर इज नोन एज कम्युनिटेड फ्रैक्चर. Next MCQ was a rolling occurs when the surfaces are, options were congruent, incongruent, convex or concave. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इनकॉन्ग्रुएंट. ये सर्फेसेज हैं, अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो, सर्फेसेज एक जैसी हों, तो जो मूवमेंट है दैट इज स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग, और अगर हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेसेज हैं तो जो मूवमेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज रोलिंग. Next MCQ was modality that does not emit heat or sound waves is, options were ultrasound, infrared, laser or none of these. And to my knowledge the correct option is laser because ultrasound emits sound waves and the infrared emits heat waves, and laser is the correct option. Next MCQ was in which type of the lever load is between fulcrum and effort. इस MCQ के अंदर lever की statement word missing है. So the options were first order, second order, third order, and the correct option is second order lever. अगर आप kinesiology की बुक से पढ़ें तो levers की हमारे पास तीन types हैं, first order, second order, third order. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लेवर के अंदर हमारे पास जो फलक्रम है वो मिड में है, एफर्ट और लोड, एफर्ट और जो लोड है उसके बीच में, एफर्ट एंड लोड के बीच में, और जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर है उसमें लोड इन बिटवीन है फलक्रम और एफर्ट के, और जो थर्ड ऑर्डर है उसमें एफर्ट बीच में आ जाती है और फलक्रम और लोड साइड्स पे होते हैं. तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेकंड ऑर्डर लेवर. Next MCQ was the therapeutic ultrasound is, options were low frequency current, medium frequency current and high frequency current or none of these, and the correct option is option C, high frequency current. Next MCQ was the most common injury experienced by the footballers is options जो colleagues से मुझे मिले हैं उसमें एंकल स्प्रेन उन्होंने मार्क किया है कि करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज़ ट्रू कि एंकल स्प्रेन की इंजरी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है फुटबॉलर्स में, लेकिन इसके अंदर हम करेक्ट आंसर के बारे में डेड श्योर नहीं हो सकते जब तक मेरे पास एग्जैक्ट ऑप्शन ना हो जो और थी, क्योंकि ACL और MCL की इंजरीज भी फुटबॉलर्स के अंदर कॉमन है. तो जब बाकी ऑप्शन हमारे सामने होंगी तो हम डेड श्योर हो सकते हैं कि ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है. Next MCQ was which one of the following is the most common test to assess lumbar radiculopathy? And the option I have received is slump test. So yes, it is true. Slump test is used to assess lumbar radiculopathy, but we need to have other options as well to make a specific choice. तो अगर हमारे पास स्लम टेस्ट की ऑप्शन है तो दैट इज़ ट्रू कि स्लम टेस्ट हमारे पास लंबर रेडिकुलोपैथी को असेस करने के लिए यूज़ हम उसको करते हैं, और अगर अदर जो ऑप्शन थी तीन वो किसी और कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए थी तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी द स्लम टेस्ट. Next MCQ was therapeutic ultrasound is used to treat, options were osteoarthritis, soft tissue injury और अदर ऑप्शंस मुझे रिसीव नहीं हुए. तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हम थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं फॉर हीलिंग पर्पसेस. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन. बाकी आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं.
नेक्स्ट एमसीक्यू वाज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स एथलीट्स फ्रॉम इंजरीज एंड मसल सोरनेस। ऑप्शंस जो करेक्ट ऑप्शन कोलीग्स ने बताई है दैट इज वार्म अप, लेकिन सेम सिनेरियो के अदर ऑप्शंस हमारे पास होने ज़रूरी हैं, बट इट इज़ ट्रू कि वार्म अप हमारे एथलीट्स को इंजरीज और मसल सोरनेस से प्रिवेंट करते हैं। इससे ऑनवर्ड्स जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं उसके अंदर यही प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है कि ऑप्शंस मिसिंग हैं एग्जैक्टली। तो ऑप्शंस मिस होने की वजह से जो स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आप डेड श्योर नहीं हैं आंसर के बारे में, लेकिन स्टेटमेंट्स मैंने एज इट इज़ यहाँ पर प्रोवाइड की हैं ताकि आपको आइडिया हो कि एमसीक्यू किस सेक्शन से उन्होंने उठाए थे और किस एरिया को वो टारगेट कर रहे थे, ताकि अब जब भी आप लोग अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन करें तो आप उन एरियाज़ को लाजमी देख लें। तो इस एमसीक्यू से बेशक हमें एग्जैक्ट आंसर डेड श्योर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वार्म अप और कूल डाउन जो हमारा टॉपिक है उधर से एमसीक्यूज पिक हुए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज ए सिम्टो इट वाज आई सपोज इट वाज सिनेरियो बेस्ड, जिसमें पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक नी पेन है और रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन है और स्वेलिंग है बरसा की और उसके फ्लूइड की। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका करेक्ट आंसर आंसर था दैट वाज बेकर सिस्ट और बर्साइटिस, जो कि पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट यहाँ पे स्वेलिंग मौजूद होती है और ऑब्वियसली दैट कॉजेज पेन एंड लिमिटेशन इन नी जॉइंट मोशन। So, Baker cyst or bursitis can be a correct answer to this MCQ. Next MCQ, the patient with wrist pain aggravates with grasping movements and making a fist, and the correct option जो colleagues ने mark किया है that is decurvane stenosynovitis. Yes, that's true कि जो ये disease है decurvane stenosynovitis जिसमें synovial sheath की inflammation है जो हमारे wrist के दो abductors को surround कर रही होती है, तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसमें ग्रैस्पिंग मूवमेंट्स से पेन है और फिस्ट बनाते वक्त पेन होता है। और इसका एक स्पेशल टेस्ट भी है दैट इज़ नोन एज फिंकलस्टीन्स टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो कंडीशन है दैट इज़ डिकोरवेन स्टीनोसाइनोवाइटिस। Next MCQ was which of the following is the most appropriate response to the warm-up exercises, and option जो मुझे receive हुए that is increase muscle flexibility. That's true, but we need to have other options as well to be sure about the correct answer. Next MCQ was somewhat like the force imposed on muscle or group of muscle. The tension is developed in GTOs, muscle spindles and other options. So इसकी क्योंकि स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है तो हम आंसर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो GTOs की बात है, जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं, जब भी आपके मसल के अंदर टेंशन डेवलप होती है तो उसको जो सेंस करते हैं वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स करते हैं, और जब आपकी मसल लेंथ चेंज होती है उसको जो डिटेक्ट करते हैं वो स्ट्रक्चर्स हमारे मसल स्पिंडल्स हैं। बोथ ऑफ दीज आर प्रोप्रियोसेप्टर्स। सो अगर हमारे पास स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो तो हम आंसर ज़्यादा बेहतर दे सकें। नेक्स्ट MCQ was about interferential therapy is used in all conditions except muscle re-education, wound healing or muscle stimulation. I'm not sure about the correct answer, but it could be muscle stimulation, but I'm not sure about it. So अगर आप श्योर हैं इस बारे में तो ज़रूर बताएं। Next MCQ was correlation analysis is used for options were association among variables. That is true. अदर ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी या बायोस्टैट्स से लिया गया एमसीक्यू है। जब हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करते हैं कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next MCQ was which one of the following method is recommended for acute soft tissue injury? Options were rice and other options. So yes, rice is used for managing acute soft tissue injury as recommended by our books. R stands for rest, I stands for icing, C stands for compression, and E stands for elevation. So rice method is used for managing acute soft tissue injury. Next MCQ was about the range of motion should not be performed and it is disruptive in which of one of the following. इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं कि जब आपने मूवमेंट नहीं परफॉर्म करनी, नॉर्मली वो उस जगह पर होती हैं जहाँ पे हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, और मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्स जिस जगह पे हील हो रहे हैं वहाँ पे हम मूवमेंट्स को कुछ अरसे के लिए हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि जो बोन्स हैं वो सही से हील हो जाएं।
या टेंडन का टेयर है, मसल का टेयर है, वहाँ भी हम उसको मूवमेंट्स को परफॉर्म नहीं करते ताकि बोन या मसल टेंडन के ऊपर स्ट्रेन ना पड़े और हीलिंग प्रोसेस अफेक्ट ना हो। सो अगर हमारे पास अदर ऑप्शन रेलिवेंट थे तो दैट इज़ ट्रू कि अगर कहीं पर हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो इस जगह पर हम रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट्स नहीं करवाते। Next MCQ was about which of the following is not a factor associated with cardiovascular condition। ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। अगर आपको याद है, आपको रिकॉल है, तो स्टेटमेंट को आप कोट करें नीचे कमेंट सेक्शन में, फिर हम उसके आंसर को डिस्कस करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता था। Next MCQ was about in which phase of the cardiopulmonary rehab aerobic exercises start. Options were phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. According to my knowledge, this is phase 2 जिसमें हम aerobic exercises start करवाते हैं। phase 1 basically acute phase होता है जो कि in hospital ही phase होता है, और phase 2 के अंदर हम aerobic exercises start करवाते हैं। But if you know, yeah, if you're dead sure about some other option, please let us know in the comment section. Next MCQ was about the research depth cannot be judged by option where objectives of research and other options are missing। तो जब हमारे पास अदर ऑप्शंस होंगी तो हम इसका आंसर ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो पिक करने वाली बात है वो ये है कि जो रिसर्च का एरिया है वो भी टारगेट किया जाता है SPSC के एग्ज़ाम में, क्योंकि हम 2 MCQs देख चुके हैं जो कि प्रॉपर रिसर्च या बायोस्टैट से लिए गए हैं। Next MCQ was about the mechanical properties to transfer load and force, which of the following helps to transfer load। और इसकी भी ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट एज इट इज़ नहीं है जो पेपर में आई होगी, लेकिन अगर मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करूं तो वर्टिब्रास और जो शाफ्ट ऑफ बोन्स हैं दे ऑल आर ट्रांसफरिंग द लोड्स। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर हो तो हम इसमें से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो। Next MCQ was about in which one of the following is true for a 40 years old patient whose muscle strength is decreasing as a part of the aging process. Energy also decreases, power also decreases, and other options. And as per my knowledge, if strength is decreasing, the power will also decrease. So option B will be the correct answer. Next MCQ was about the hip joint stability, और फीमर के हवाले से था, जिसकी स्टेटमेंट्स 2-3 कोलीग्स ने मुझे कंफर्म की हैं बट वो आपस में मैच नहीं करती। तो उसमें करेक्ट ऑप्शंस जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए थे, फेमरल, एंटीवर्जन, रेट्रोवर्जन, क्यू एंगल एंड एंगल ऑफ पुल। लेकिन अगर हमारे पास स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर हो कि हम स्टेबिलिटी कम करने की बात कर रहे हैं या हम स्टेबिलिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर होगी, तो हम उसके बारे में जवाब दे सकते हैं। इस स्टेटमेंट की बेस पे जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट MCQ वाज अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी, जिसकी स्टेटमेंट मिसिंग है, एंड आई थिंक इसके अंदर लूमिनस और नॉन लूमिनस जनरेटर्स की बात की गई है। लेकिन अगर हमारे पास स्टेटमेंट हमें कोलीग्स हेल्प आउट करें स्टेटमेंट के हवाले से, तो हम आंसर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नेक्स्ट MCQ वाज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर एसोसिएटेड विद कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। ये बेसिकली मैच करता है पुराने जो हमने अभी पीछे एक MCQ देखा है एज वाला। तो ये 2 कोलीग्स की डिफरेंट स्टेटमेंट्स जिन्होंने बताई थी कि इस तरह का कोई MCQ आया था, तो वो चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि एग्जैक्ट अगर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए तो हम उसको आंसर दे सकते हैं। बट जो पॉइंट पिक करना है इस स्टेटमेंट से वो ये है कि जो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से जो MCQs हैं वो पिक हो रहे हैं। Next MCQ was about HVLA, high velocity and short amplitude thrust movement. And other MCQ was systematic chemical or local lesion of nerve can cause so spasticity। एक ऑप्शन दिया गया था दैट इज़ ट्रू कि अगर हमारे पास नर्व का लीजन होता है तो उसकी वजह से रिजिडिटी या स्पासिटी हमें देखने को मिलती है। Next MCQ was about adjustment of temperature in the pool therapy, that MCQ is from hydrotherapy। तो इसके बारे में स्टेटमेंट जब हमारे पास पूरी हो और ऑप्शन हमारे पास हो तो हम उसको आंसर बता सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 40 MCQs थे जो कि लिए गए थे आपके कोर्स में से। जो नेक्स्ट 10 MCQs हैं दैट आर फ्रॉम इंग्लिश, और जो इसके अंदर हमारे पास 20 से ऑनवर्ड्स MCQs हैं उसमें स्टेटमेंट्स हैं और ऑप्शन थोड़े से मिसिंग है। अगेन मैं रिपीट करूँगा कि उस चीज़ का पर्पस सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं वो किस एरिया से लिए गए थे फिर DPT के कोर्स में से।
तो नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से थे। First MCQ was, which of the following is the antonym of protect? Options were deprive, secure, devise or desert, and the correct option is desert. कि अगर आप एंटोनिम बेसिकली ऑपोजिट को कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डिज़र्ट के अंदर आप उसको एक तरह से उसको डिसऑन करते हैं, तो एक जगह आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरा आप बिल्कुल डिसऑन कर रहे हैं, तो दैट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Next MCQ is the synonym of prohibit is. Options were forbid, advise, instruct or manage, and the correct option is forbid. एंटोनिम जैसे ऑपोजिट वर्ड है और सिनोनिम इज सिमिलर वर्ड्स, तो प्रोहिबिट किसी को रोकना एंड फॉरबिड आल्सो मीन्स कि किसी को रोकना, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फॉरबिड. Next MCQ was fill in the blank. There is dash fish in dash bottle, and the correct option is option A. There is a fish in the bottle. Next MCQ was about the items are now dash sale in the store. Options were for, on, not, in, and the correct option, as per my knowledge, is on. The items are now on sale. इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि अगर किसी भी स्टोर के ऊपर कोई चीज़ सेल होने के लिए रखी है, बिकने के लिए, तो हमारे पास फोर यहाँ पर हम लगा सकते हैं, द आइटम्स आर फॉर सेल इन द स्टोर, ताकि पता चले कि इस आइटम को आप ख़रीद सकते हैं. लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक ऑफ लगा है, लाइक 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, इट मीन्स दे आर ऑन सेल, कि इसके ऊपर डिस्काउंटेड है. तो इसमें अगर हम नाउ का वर्ड देखें, द आइटम्स आर नाउ डैश सेल, तो इसका मतलब है कि जो आइटम्स थे वो पहले से सेल पे थे, लेकिन अब उनके ऊपर कोई ऑफ परसेंटेज लगाई गई है, तो इस हिसाब से ऑन का यहाँ पे सूट करता है, द आइटम्स आर नाउ ऑन सेल इन द स्टोर. Next MCQ was, which of the following options explain the idiom to pick holes? Or options were criticize, to appreciate, to protect or to defend, and the correct option is to criticize. कि कीड़े निकालना, to pick holes, कीड़े निकालना, and criticize इस चीज़ को explain करता है, तो correct option is option A. Next MCQ is, one who believes in power and fate is called. Options were option A, fatalist, option B, pessimist, option C, optimist, and option D, defeatist, and the correct option is fatalist. Next MCQ was, fill in the blanks. A gentleman should be true dash his words. Option were to, on, with, off, and the correct option is option A, to. Next MCQ was, a synonym of compassion is. Options were kindness, regret, protect, or desire, and the correct option is kindness. Similar word to compassion is kindness, meherbani. Next MCQ, I cannot dash the meaning of the passage. Option were make out, make in, make off, or make up, and the correct option is option A, make out. नेक्स्ट MCQ जो 50 MCQ थे, दैट वाज अबाउट पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, जिसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है. सो बेसिकली ये 50 MCQs थे जो कि SPSC के एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास आए, और उसको मैंने जितना मैं पॉसिबल था उसको समराइज़ करने की कोशिश की है इन द फॉर्म ऑफ PPT that can act as a guidance for the upcoming SPSC और PPSC एग्ज़ाम्स. तो कुछ स्टेटमेंट्स एज यू नो के मिसिंग्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर उन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करने के अंदर हेल्प आउट करें जिन जिन लोगों ने SPSC को अटैम्प्ट किया है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करके एक फ़ाइल क्रिएट कर दें जो कि शेयर हो सके जूनियर्स और कोलीग्स या सीनियर्स के साथ. सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए एज अ गाइडेंस मटेरियल काम आएगी आने वाले दिनों में. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.